I would like to introduce Arti with his small introduction. Born on 17th October, an MBA graduate with specialization in HR and marketing from DY Patil Business School, Pune. PDRR Dr. Aarti Goswami is a charming lady with a rational mix of energy and leadership. Joined Rotaract in 2040 as a member of 40-year-old club, which is Rotaract Club of Chandapura of District 30. Christmas. The very next year, he became the club secretary and being awarded as the most active Rotaractor in the year 1617. He led the club from front as the club president of Rotary Club of Chandapura in the same year, but to take a bigger responsibility. He went up to become the district Rotaract representative of RI 3030 during the golden jubilee year of Rotaract, which was 2020. And for her country, as the DRR she made, she has been rewarded to serve again for the second consecutive year, which was 2019. During her tenure, DRR for the first RI district 030, the concept of DRR elect, DRR nominee, and nominee designate has been introduced. She was successful and appreciated in officially electing and pipelining 3 future leaders for her district. She was appointed as Special Aide to President of RSA MDIO for the year 2018-19, and as she supposed she is to be favorable for serving any role for 2 consecutive years. Yes, she proved it right once again. She was appointed once again as Special Aide to President of RSA MDIO for the year 2019-20. A journey of an active protector cannot end without journeys to the other districts, no less. In traveling, she likes to travel and meet new people. She has attended various inter-district and multi-district events, to name a few. She has attended Rotarias held at Chandigarh, Pune, and Goa. Leaders meet leaders with RI President Barry Racine at Chennai. Paris Summits and installation held at Ramnagar and Jagannath Puri. Rotary Zone Institutes of Mumbai and Vapi. Installation at Udaipur. All India Rotary Athletic Meets at Mysore. Rotamoon and International Model United Nations at New Delhi as a trainer for President-elect at Kolhapur and Delhi is in. The most characteristic Barry Racine during her visit to Rotary International Pre-Convention at Hamburg. With great roles comes great responsibility. Here with more view and the better, has elected first lady president of RSIO organization for the year 2021. So, from what I hand over the session to Aarti. For you, Aarti? यस दीप्तेश, मैं सुनाई आ रही हूँ. Yeah. हाँ, थैंक यू डिस्ट्रिक्ट 3250 फॉर सच अ वार्म वेलकम एंड अ वार्म इंट्रोडक्शन. अगर आपकी इजाजत है तो मैं सेशन के लिए शुरू करती हूँ. Please go ahead. जी. सबसे पहले शुरू करने से पहले मेरा इंट्रो तो आप सबको दे दिया गया है. सेशन होने के बाद हम लास्ट में 5 मिनट में आपको जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वो क्वेश्चन एंड आंसर राउंड करेंगे. तो सबसे पहले तस्नीम, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आपकी होम क्लब में और आपके डिस्ट्रिक्ट में फ्लैगशिप इवेंट्स जो सिग्नेचर इवेंट्स है वो लिए जाते हैं? यस आरती. ओके. सो बेसिकली ये जो आज का टॉपिक है, इस सारी चीजों के आंसर्स हमारे पास्ट में छुपे हुए हैं. आई वांट तस्नीम कि मतलब जैसे भी कोई आपका एक जो फ्लैगशिप इवेंट, अगर आप उसका नाम मुझे बता देगी तो अच्छा होगा. See, Aarti, we basically go on different clubs use their different flagship projects. Like one of the club, there is the oldest club. We have Chaibasa, which used to organize a quiz competition, a maths quiz competition, which covers the around 10 to 15 slum sectors, and the students will get some scholarships and the rewards as the sum of amount. As well, we have a few of the clubs who celebrate the flagship project as the blood donation camp as well, literacy as well, and one club celebrates Roti Day as well as their flagship project. Thank you. Okay. Thank you, Tasneem. Anytime, Aarti. Yeah. So before heading, I would like to just कि मैंने ये इसीलिए पूछा क्योंकि आगे बढ़ने से पहले हमें किसी भी सिग्नेचर प्रोजेक्ट्स के लिए उसके पास्ट के बारे में जानना जरूरी है. जैसे कि कितने सालों से ये प्रोजेक्ट चलते आ रहा है, पहली बार ये प्रोजेक्ट कब और कहाँ हुआ था, फिर कोई प्रोजेक्ट के बीच में इतने सालों में कोई गैप तो नहीं पड़ा, फिर कितने लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था,
और इस पूरे प्रोजेक्ट का बजट कितना जाता है, फिर ये प्रोजेक्ट कभी प्रॉफिट में गया है या कभी किसी साल में लॉस में भी गया है, या फिर किसी डिस्ट्रिक्ट से या किसी एमडीआईओ से या आपके खुद के होम डिस्ट्रिक्ट से इस प्रोजेक्ट को कभी कुछ अवार्ड मिला है या नहीं। तो आगे बढ़ने से पहले हमको ये सब चीजें पता होना इसीलिए जरूरी है, क्योंकि अगर कोई भी हम न्यू प्रोजेक्ट लेते हैं तो वो हम लोग अपने मन से कभी भी उसमें कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कोई सिग्नेचर प्रोजेक्ट या फ्लैगशिप प्रोजेक्ट लेते हैं तो हमें उसके प्रोटोकॉल्स और इतने सालों से जिस हिसाब से वो चलते आ रहा है उसके बारे में ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप उसमें कुछ पॉजिटिव चेंजेस नहीं कर सकते, पर आपको उस चीज की लीगेसी कंटिन्यू करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप वो लीगेसी कंटिन्यू नहीं करेंगे तो वो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट और सिग्नेचर प्रोजेक्ट का उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा जितना पड़ना चाहिए और जो इतने सालों से पढ़ते आ रहा है। तो आपको ये सब पता अगर चीजें होगी तो आप आपके उस ईयर के फ्लैगशिप प्रोजेक्ट के लिए अपना बेस्ट बेस तैयार कर लेंगे, और बेस तैयार होने के बाद चीजें अपने आप होगी। तो पहले हम उसके मतलब वो प्रोजेक्ट कितने साल से मैच्योर है उस सारी चीजों के बारे में हमें जानना पड़ेगा, ताकि उस प्रोजेक्ट को लेके और लोगों के मन में, आपके प्रेसिडेंट के मन में या आपकी टीम मेंबर्स के मन में एक ट्रस्ट बन पाए कि नहीं, हमें सारी पास्ट की चीजें पता है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम जैसे मैं एक प्रोजेक्ट लेती हूँ मेरे होम क्लब में, जिसे हम कहते हैं डांडिया धमाल, जो पिछले 7 सालों से चलते आ रहा है। तो डांडिया धमाल में हम लोग ये करते हैं, जैसे पहले साल हम लोग बहुत कम लोग आए थे, दूसरे साल लोग बढ़ने लगे, तो हमने पिछले प्रोज एंड कॉन्स को जानते हुए हम लोग आगे बढ़े कि इसमें हम क्या सुधार सकते हैं, इसको हम किस अलग वे में प्रमोट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लेंगे कि लास्ट ईयर अगर हमारे पास अगर लास्ट ईयर की रजिस्ट्रेशन डिटेल्स होगी तो हमें पता करने में बहुत ज्यादा आसानी होगी कि इस साल हम उन्हीं रजिस्ट्रेशंस को टारगेट करके उस प्रोजेक्ट्स को और इनोवेटिव और अच्छा कैसे बनाए। जैसे तस्नीम ने मुझे बताया कि आपके डिस्ट्रिक्ट में क्विज कॉम्पिटिशन्स होते हैं स्लम्स एरियाज में, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर हम पिछले साल को आई मीन ध्यान में रखते हुए वो चीज आगे नहीं बढ़ाएंगे तो फिर हम उस न्यू न्यू चीज को कैसे गैदर करेंगे कि फिर से हमारा ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से हो। तो हम रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के थ्रू ये चीजें कर सकते हैं। और आजकल हर कोई सोशल मीडिया, यूट्यूब, हर जगह प्रमोशंस करता है। पर आप एक बात सच सच बताओ कि आप लोगों में से कितने लोग सच में ये चीजें देखते हैं, जबकि जब तक अनलेस एंड अनटिल वो हमारे किसी क्लोज वन का ना हो। जैसे आजकल अभी लॉकडाउन की वजह से सबसे ज्यादा सोशल मीडिया यूज हो रहा है, स्पेशली जूम ऐप, ये सब ऐप मीटिंग्स यूज हो रही है। तो जब तक हमारे पहचान वाले का नहीं हो हम वो चीज नहीं देखते। तो मैन टू मैन कम्युनिकेशन या मैन टू मैन प्रमोशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके किसी भी सिग्नेचर और फ्लैगशिप प्रोजेक्ट के लिए। जब तक आप उसको मैन टू मैन कम्युनिकेट नहीं करेंगे कि लास्ट ईयर हम लोगों ने ये किया था, या फिर अगर आप उसके वीडियोस बना के अपलोड नहीं करेंगे तो लोगों को उस चीज की इंपॉर्टेंस नहीं समझ में आएगी और आप आपका फ्लैगशिप इवेंट अच्छे से कैरी ऑन नहीं कर पाओगे। इसके लिए और एक भी तरीका है कि आप अपने पीडीआर्स को इन्वॉल्व कीजिए। आप अनमोल भाई को पकड़िए, दीप्तेश भाई को पकड़िए, तस्नीम को पकड़िए कि हाँ मैं ये इवेंट में लास्ट टाइम गई थी, मैंने ये लास्ट टाइम इवेंट कंडक्ट किया था, क्यों ना आप भी ज्वाइन करें हमको इस इवेंट में। ये सब बातें आप उनको अच्छे वे में बताए तो वो शायद आपके प्रोजेक्ट में ज्यादा अच्छे वे में ज्वाइन होंगे। अभी जो लेटेस्ट चीज चल रही है, जैसे हम लोग किसी भी फ्लैगशिप इवेंट के लिए हम लोग पोस्टर्स बनाते हैं, या कोई भी ट्रेनिंग सेशन है, जैसे आज मेरा और विरल का पोस्टर बनाया गया था। तो पोस्टर में आप डेट, वेन्यू, ये सब चीजें लिख के पोस्टर काफी बड़ा लेंदी बन जाता है। उसको आप एक हैप्पी चीज में भी आप उसको प्रमोट कर सकते हैं। जैसे आजकल के टाइम में चल रहा है किसी भी चीज का मीम बनाना। मीम्स नेगेटिव हो या किसी का मजाक उड़ाया जाए ये इसीलिए मीम्स नहीं होते। आप उसको एक हेल्दी मीम भी बना सकते हैं। जैसे आप लास्ट ईयर का कोई पार्टिसिपेंट पकड़ लीजिए, जैसे मैंने बोला कि मैं डांडिया धमाल ऑर्गेनाइज करती हूँ, तो उसमें किसी बंदे का डांस बहुत अच्छा है तो उसको आप मीम में कंपेयर कर सकते हैं कि वांना सी ऋतिक रोशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट ब्ला 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 एंड यू कैन जॉइन दिस फॉर इवेंट। दूसरा आप उनको ये प्रमोट कर सकते हैं कि आपको ये चीज में कितने अवार्ड्स मिले, कि जैसे हम डांडिया में हम लोग ये करते हैं कि हम लोग हाईलाइट करते हैं कि लास्ट ईयर हमको इस इवेंट के लिए इतने इतने अवार्ड्स मिले थे। आप इस तरीके से उसको प्रमोट कर सकते हैं। या आप आपके टॉप लेवल के सीनियर्स को भी पकड़ सकते हैं कि नहीं आप बोलिए कि हमने भी ये इवेंट किया था, आप उस तरीके से उसको प्रमोट कर सकते हैं। क्योंकि न्यू प्रोजेक्ट्स पे लोगों का ट्रस्ट बैठता है पर धीरे धीरे बैठता है, पर फ्लैगशिप इवेंट से लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीदें होती है कि किस वे में, सो उसके प्रोटोकॉल्स फॉलो करके ही उसको आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा मेरा ख्याल है। एंड दूसरी बात, सोशल मीडिया पे कंटिन्यूअस हैमर कीजिए
बार बार उसको पब्लिक कीजिए कि नहीं इस डे पे ये इवेंट हो रहा है, कुछ उसकी इंपॉर्टेंस निकाल के उसको प्रमोट कीजिए, तो ये आपको ज्यादा हेल्प करेगा किसी भी फ्लैगशिप इवेंट में करने के लिए। और दूसरी बात, हाँ, मीम्स का जो मैंने बताया वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि आजकल लोग कुछ पढ़े ना पढ़े मीम्स जरूर पढ़ते हैं, तो आप उसका हेल्दी मीम बना के उसको ये कीजिए। हर किसी की आइडियोलॉजी डिफरेंट हो सकती है, हर किसी की सोच डिफरेंट हो सकती है, बट एट द एंड आप थोड़े बहुत चेंजेस करके भी आपका फ्लैगशिप इवेंट आगे बढ़ा सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको घिसी पिटी चीजें पास्ट से यूज करनी है, बट पास्ट के रेफरेंस के बिना आप फ्लैगशिप इवेंट नहीं कैरी ऑन कर सकते। जब तक उसके प्रोज और कॉन्स पता नहीं होंगे आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। सो आप इसी वे में आगे बढ़ते जाइए, और आपके फ्लैगशिप इवेंट को सबसे ज्यादा किसी स्पॉन्सर उसको पकड़िए, उनको बताइए उसका इम्पोर्टेंस, कि हम इतने साल से ये इवेंट करते आ रहे हैं, आप भी इस अच्छे काम में ज्वाइन होना चाहते हो, नहीं होना चाहते हो, तो आप मार्केट में जाइए, ये उसकी प्रमोशन कीजिए, यू विल श्योरली गेट बेनिफिटेड आउट ऑफ इट। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। So now we are open for question answer session. किन्हीं का भी क्वेश्चन है तो कृपया चैट पे भेजें जल्दी। हेलो हेलो हेलो। हाँ मैम, मैं इन शॉर्ट जानना चाहता हूँ ये फ्लैगशिप प्रोजेक्ट होता क्या है? फ्लैगशिप प्रोजेक्ट ये है बेसिकली आपका कोई भी सिग्नेचर प्रोजेक्ट जो आप आपका डिस्ट्रिक्ट या आपका होम क्लब बहुत सालों से करते आ रहा है। मतलब एक ही प्रोजेक्ट ऐसा होता है जो हर साल हर प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी के टेन्योर में किया जाता है। जैसे मैंने बताया डांडिया धमाल, एक डांडिया धमाल जैसे अपने डिस्ट्रिक्ट में हम लोग बहुत सारे इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स करते हैं, पर एक प्रोजेक्ट जो ऐसा होता है जो हम लोग हर साल करते हैं, जैसे आप महादान ले लीजिए, महादान जैसे अभी एक इनिशिएटिव है जो अभी हम लोग 3 साल से करते आ रहे हैं, वैसे कोई भी एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट जो आपका क्लब बहुत सालों से करते आ रहा है उसको फ्लैगशिप प्रोजेक्ट या सिग्नेचर प्रोजेक्ट बोलते हैं। मतलब वो आपके क्लब का एक इम्पोर्टेंट पार्ट दर्शाता है कि ये प्रोजेक्ट के नाम से इस क्लब को जाना जाता है बेसिकली। जैसे मेरे और एक होम क्लब में हम लोग और एक प्रोजेक्ट करते हैं कि हम एक मराठी नाटक ऑर्गेनाइज करते हैं हर साल। तो उसमें जैसे जो मराठी सेलिब्रिटीज होते हैं उनका थेरेटिकल एक्ट होता है, तो वो हम लोग हर साल इवेंट करते हैं। तो मेरे चंद्रपुर में मेरे रोटरा क्लब को उस प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना जाता है, तो बेसिकली उसको सिग्नेचर प्रोजेक्ट या फ्लैगशिप प्रोजेक्ट बोलेंगे। आपको आपके प्रेसिडेंट्स को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा कि देखिए हमने पास से ये सर्वे किया है कि इस प्रोजेक्ट में ये चेंज कर सकते हैं। नेगेटिविटीज को हटा के हम लोग अगर पॉजिटिव वे में उस प्रोजेक्ट को आगे प्रेजेंट करें तो वो ईयर टू ईयर और ग्रो होगा। जैसे तस्नीम ने बोला कि क्विज कॉम्पिटिशन ले, तो उसमें अगर हम कुछ और वेरिएशंस डालें तो वो प्रोजेक्ट और बेटर बन सकता है। एनी मोर क्वेश्चंस? थैंक यू। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू इनिशिएट अ फ्लैगशिप प्रोजेक्ट। हाँ, हाउ टू इनिशिएट अ फ्लैगशिप प्रोजेक्ट। अगर आपके क्लब में या डिस्ट्रिक्ट में अभी तक कोई फ्लैगशिप प्रोजेक्ट इनिशिएट नहीं किया गया है, तो आप आपके क्लब मेंबर्स, मतलब अभी सेक्रेटरीज की ट्रेनिंग है तो मैं क्लब लेवल पे बताऊंगी, तो आप अपने क्लब मेंबर्स के साथ एक मीटिंग रखिए, उनके साथ ये पहले अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया है तो आप वो उनके सामने प्रेजेंट कीजिए। अगर आपके पास आइडिया नहीं है तो आप सबसे सजेशंस लीजिए कि हम एक ऐसा प्रोजेक्ट उठाना चाहते हैं, आपके आपके प्रेसिडेंट को बोलिए, क्योंकि सेक्रेटरीज के बिना प्रेसिडेंट अधूरा है, ये मैं फील करती हूँ पर्सनली। तो आप अपने प्रेसिडेंट को कॉन्फिडेंस में लीजिए, उनको बोलिए कि देखिए हम हर साल कुछ ऐसा करें जो एक ही कॉमन प्रोजेक्ट रहे, जो आने वाले प्रेसिडेंट्स भी, आने वाले सेक्रेटरीज भी उसको कैरी ऑन करे। तो इनिशिएट करने के लिए ऐसी कोई स्पेशल तरीका नहीं है, आप आपकी क्लब मीटिंग लीजिए, उसमें सबके सामने रखिए कि जैसे आपको कोई एक प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, जैसे आपने किसी स्कूल को अडॉप्ट किया हो, तो आप उसी स्कूल में हर साल कोई ऐसा प्रोजेक्ट लीजिए जो उनके फेसेस पे स्माइल लाए। जैसे कोई बुक डोनेट कीजिए, तो हर साल वही एक बुक डोनेशन प्रोजेक्ट कंटिन्यू कीजिए आप आपके साइड से। मतलब साल में कोई प्रोजेक्ट हो ना हो, ये प्रोजेक्ट जरूर होके रहेगा।
तो आप उस वे में उसको इनिशिएट कर सकते हैं. थैंक यू आरती. नेक्स्ट क्वेश्चन है, will the modification in the flagship event will harm its impact and its name fame? नो, इट वोंट हार्म. अगर आप किसी भी चीज को और बेटर करना चाहते हो, हाँ आपको नेगेटिविटी जरूर फेस करने मिलेगी कि कोई आपको बोलेगा अरे ये प्रोजेक्ट तो मैंने इनिशिएट किया था, आप उसको कैसे चेंज कर रहे हो. बट इफ यू विल मेक देम अंडरस्टैंड दिस प्रोजेक्ट आफ्टर पुटिंग दैट पॉजिटिविटी और दैट चेंजेस will change into a better thing or a better project, then the people or the person will surely understand कि नहीं ये betterment के लिए किया जा रहा है. फ्लैगशिप प्रोजेक्ट आप आपके पर्सनल यूज के लिए तो करेंगे नहीं, आप लोग क्लब और लोगों की भलाई के लिए ही करोगे. तो अगर आप उसमें पॉजिटिव चेंज करोगे तो मुझे नहीं लगता कि उससे किसी को कोई हार्म और फेम को कोई धक्का पहुंचेगा. हाँ लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो, वरना उसका नाम जरूर खराब होगा. बट मॉडिफिकेशन हर चीज में जरूरी है, बिकॉज आई फील चेंज इज द ओनली थिंग विच हैपेंस टाइम टू टाइम. सो हमको मॉडिफाई तो करते रहना पड़ेगा, हमको टाइम के हिसाब से बदलना तो पड़ेगा. जैसे पहले कुछ चीजें अवेलेबल नहीं रहती थी, अभी के टाइम में कुछ चीजें अवेलेबल है. जैसे जो एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट फॉर एग्जांपल अगर 5 साल से चल रहा है, तो कुछ चीजें आपको पहले ईयर में नहीं मिली होगी जो आपको 5th ईयर में मिल सकती है. तो क्यों उसको बेटरमेंट के लिए मॉडिफाई ना किया जाए? श्योरली यू कैन गो फॉर दैट. आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ. what is the most important, sorry, how many years needed for any event to be a flagship event? अगर आप उसको बिना ब्रेक के अगर आप 3 साल भी कंटिन्यू करते हो तो इट विल बी कॉल्ड एज अ फ्लैगशिप इवेंट, क्योंकि आप कंसेक्यूटिव 3 साल से उसको करते आ रहे हो. Okay. Next question. Flagship is very thing we need a strong fund. Share your idea how to increase the fund. एक्चुअली टू इंक्रीज द फंड, ये सब आपके डिस्ट्रिक्ट और एरिया और आपके सिटीज पे डिपेंड करता है. और आपकी मतलब लोगों से पैसे मांगने की कैपेसिटी पे डिपेंड करता है. क्योंकि मैं जब से रोड ट्रैक में आई हूँ, मैंने एक चीज सीखी है कि अगर हमको लोगों का भला करना है, तो आपको शायद मेरे वर्ड्स रूड लगे, पर किसी से पैसे मांगने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए. क्योंकि हम एक मीडिएटर है स्पॉन्सरर और लोगों के बीच में. तो अगर आप उनको अपने मतलब उसको प्रेजेंटेशन आप ऐसा बनाइए कि सामने वाला आपको ना नहीं कर पाए. क्योंकि फंड देने में हर कोई आनाकानी करता है, क्योंकि उसके जेब से पैसे जाएंगे तो वो 10 सवाल तो करेगा. सो यू शुड बी गुड एनफ टू आंसर एवरी क्वेश्चन ऑफ देम, दैट व्हाई यू आर डूइंग दिस, what purposefully you are doing this, what betterment people will get after you do this projects. So this answer should you have, then people will be there to give to sponsor you for this project. Okay. Next question is, what is the most important role and responsibility of a new secretary? मैं सेक्रेटरीज का रोल तो प्रेसिडेंट से ज्यादा होता है, क्योंकि सेक्रेटरी एज अ ब्रिज एक्ट करता है क्लब मेंबर्स और प्रेसिडेंट के बीच में. अगर प्रेसिडेंट से किसी की कुछ नहीं जमती हो या कुछ नहीं हो, तो सेक्रेटरी ने हर चीज संभाल लेनी चाहिए अपने क्लब में. सेक्रेटरी का काम होता है कि क्लब वाले मेंबर्स जो जिस पोस्ट पे है, जो आपके बीओडी में है, वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं या नहीं, क्लब में प्रोजेक्ट टाइम से हो पा रहे हैं या नहीं, और जो भी आपके क्लब के प्रोजेक्ट्स है वो आपके डिस्ट्रिक्ट्स को, वो आपके डीआरआर को प्रॉपर टाइम पे रिपोर्ट कर पा रहे हैं या नहीं. क्योंकि अगर आप कुछ प्रोजेक्ट्स करते हैं तो अगर आपको उस चीज के लिए रिवॉर्ड ना मिले तो उस चीज का मतलब नहीं होता. तो आप काम करते जाइए, आप ये चेक करिए एज ए सेक्रेटरी कि आपके जो भी प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं वो आपके डीआरआर तक रिपोर्ट हो रहे हैं या नहीं, आप जो भी काम कर रहे हैं वो आपके प्रेसिडेंट को पता है या नहीं, आपके क्लब्स में आपके क्लब मेंबर्स में प्रॉपर बॉन्डिंग है या नहीं. अगर आपके क्लब मेंबर्स को किसी को प्रॉब्लम है आपस में, तो आप किसी मीटिंग में एक फिश इन द पॉन्ड बोल करके आप गेम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कि जिस किसी को भी प्रॉब्लम है तो वो एक बाउल में चिट्स डाल दे, ताकि किसी को फेस टू फेस अपनी प्रॉब्लम शेयर ना करे. उस तरीके से आप आपकी प्रॉब्लम्स आपके क्लब में रिसॉल्व कर सकते हैं. तो बेसिकली ये सब मेजर काम सेक्रेटरी का होता है. Thank you, Arti. Next question है, signature projects are like a chain. Don't you think the fluctuation in quality as it happens can affect the image of the project in public?
For sure it will affect the image of the project in public, but अगर आपको किसी सिग्नेचर प्रोजेक्ट को कैरी ऑन करना है, तो अगर आप न्यू प्रोजेक्ट शुरू करें तो आप ऐसा प्रोजेक्ट शुरू कीजिए जो इजीली एक्सेसिबल हो और आपकी इमेज पे भी आई मीन प्रॉब्लम ना हो। पर हाँ, ये जरूर है कि अगर आप सिग्नेचर प्रोजेक्ट्स का चेन ब्रेक करोगे तो इमेज जरूर खराब होगा, लेकिन अगर आप उस प्रोजेक्ट को छोटे लेवल पे भी करोगे, जरूरी नहीं है कि आपका पास्ट प्रोजेक्ट्स जितने बड़े लेवल पे होते हैं वो प्रोजेक्ट आप उतने ही बड़े लेवल पे करो, आप करो उसे छोटे लेवल पे करो, एटलीस्ट चेन ब्रेक ना हो उस चीज के लिए। सो आपकी इमेज भी रह जाएगी, आपका फ्लैगशिप प्रोजेक्ट भी कंटिन्यू होगा। Thank you, Aarti. Next question. How is president dependent and different from secretary? Please explain their role individually. आई थिंक मैंने ये अभी एक्सप्लेन किया कि आप प्रेसिडेंट आप पे डिपेंडेंट हर चीज के लिए है, कि आप क्लब कैसे मैनेज कर रहे हो, आप रिपोर्टिंग कर रहे हो या नहीं, आप डिफरेंट आइडियाज गैदर कर पा रहे हो नहीं, आप क्लब को एक साथ लेके चल पा रहे हो या नहीं, जो भी क्लब मेंबर्स आ रहे हैं उसकी प्रॉपर अटेंडेंस रख रहे हो या नहीं, या एजेंडा फॉलो हो रहा है या नहीं मीटिंग में, ये सारा काम सेक्रेटरी का है। Next question है, can we assure the project to be done in the absence of president? अगर प्रेसिडेंट को प्रॉब्लम नहीं है, अगर कोई जेन्युइन रीजन है दैट ही इज नॉट देयर और ही कांट बी देयर, कोई फैमिली प्रॉब्लम या पर्सनल प्रॉब्लम है, देन यू कैन गो अहेड विद द परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट, नो प्रॉब्लम। बट प्रेसिडेंट कंसर्न्स या उसके उनके कान पे बात रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। I think we are done with the questions. Okay. Okay, एक last question है. In the continuation of the last question we have. Yeah. How long can it be tolerated? What to tolerate? मुझे ये क्वेश्चन एक्चुअली समझा नहीं, मैंने पढ़ा हाउ लॉन्ग कैन इट बी टॉलरेटेड मींस अगर जेन्युइन रीजन है तो वी हैव टू टॉलरेट, बट इफ नहीं है तो बात बैठ के बात करो दैट व्हाट इज द प्रॉब्लम, वी नीड टू टेक दिस प्रोजेक्ट, ये मंथ में नहीं ले पा रहे तो अगले मंथ में लेते हैं, बट वी शुड नॉट ब्रेक द चेंज ऑफ फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स, सो सॉर्ट आउट द थिंग्स इट आई मीन द इन द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट। सो मैंने वही कहा कि अगर जेन्युइन रीजंस है वो नहीं ही आ पा रहे हैं तो आप उनसे फोन पे कोऑर्डिनेट करके डिसीजन लेके आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। I think Pratesh, in the absence of president, vice president सिर्फ इसलिए अपॉइंट किया जाता है कि प्रेसिडेंट अगर absent है तो क्लब को अच्छे से सुचारू रूप से चलाया जा सके। जी, और अगर आपका वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो फिर आप उनसे फोन पे कोऑर्डिनेट करके डिसीजन ले सकते हैं। So I think we are done with the questions. Thank you, Aarti, for your valuable. Thank you. Thank you, Tasneem. Thank you for inviting. I hope the session is useful for your secretary. Thank you. Yes, Aarti, definitely this would be. And thank you so much for sparing your time with us and giving such a beautiful training and answering each and every question patiently to my dear attractors. Thank you so much, Aarti. Thank you. Can I leave, Tasneem? Yes, dear, you can. If you wish, you can stay, or it's all on you. Thank you so much. Yeah, thank you, Tasneem. Thank you for inviting. And guys, you can take my number from Tasneem if you want. आपको कुछ भी जरूरत है, you can just ping me anytime. Thank you, Rotractors. Have a great year ahead.